کس طرح سے ایک جو نوجوان ہے کتنے پیسوں سے اور کس طریقے سے گھر بیٹھے ہوئے اچھی ارننگ کر سکتا ہے. پیپل ہیڈ دس پری کنسیوڈ نوشن کہ ای کامرس از سم تھنگ جس میں آپ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, انٹرنیٹ ایکسیس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ڈالرز کی برسات شروع ہو جائے گی. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کتنے پیسوں سے آن لائن بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ آپ کتنا رسک کتنے ٹائم کے لیے بیئر کر سکتے ہیں. ادھر ادھر کی سب کی سنیں لیکن کریں وہ جو آپ کی اپنی بزنس ایکیومن آپ کو کہتا ہے. میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں خالی جیب تھا, میں نے کاروبار شروع کیا. یہ جو سٹوریز ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہی ہیں یعنی اسکیم ہے یہ سارا کچھ. مطلب آپ تو کہہ رہی ہیں کہ بہت اس کے لیے ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن اور لک اور ساری آپ کو اسٹریٹجیز کو مد نظر رکھنا ہے. اتنے لوگ کامیاب نہیں ہوئے جتنے یوٹیوب پہ اس طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں. تو کیا جھوٹ ہے یہ؟ وہ جو ساری سکسیس سٹوریز بتاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت لمبا جرنی ہے. بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی چیز زندگی میں ایزی نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بول باز اور میں ہوں رخشان میر. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں انیبلرز کی ماسٹر ٹرینر ثنا خان. خود بھی آن لائن سیلنگ کر کے بہت پیسہ کما چکی ہیں اور اب یوتھ کو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ کن ٹپس کو فالو کرتے ہوئے آن لائن بزنس کے ذریعے ہینڈسم انکم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ثنا خان سے آج ہم بات کریں گے ایک تو ان کی سکسیس سٹوری سے متعلق کہ کیسے انہوں نے سٹارٹ لیا, کیا آئیڈیا تھا, کیا کاروبار کیا اور ابھی اپنی ٹریننگز میں لوگوں کو کیا مشورہ دیتی ہیں. ثنا, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں آن لائن ارننگ کیا فینومینا ہے, کس طرح سے ایک جو نوجوان ہے کتنے پیسوں سے اور کس طریقے سے گھر بیٹھے ہوئے اچھی ارننگ کر سکتا ہے؟ بالکل. اچھا, تھینک یو سو مچ فار دس گریٹ کوشچن. ایکچولی میرا خیال ہے کہ لرننگ نیڈ ہماری ٹارگیٹ آڈینس کی جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کا جو کانسیپٹ ہے obviously it takes a lot of time and a lot of effort. اگر کوئی اسٹوڈنٹس یا ایسپیرنٹس یا لرنرز جو لرن کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے شارٹ کٹ اینڈ وی آر گونا گیٹ دا منی ان لائک اے ویک اور اے منتھس ٹائم, دس از ناٹ ہاؤ اٹ ہیپنس. سو جسٹ اے لٹل بیک گراؤنڈ, آئی کم فرام اے ویری ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ. آئی ڈیڈ مائی ایم فل ان بایولوجی, میرا تھیسس ورک اس میں تھا, میرے پیپرز اس میں پبلش ہو رہے تھے اینڈ ایوری تھنگ ایلس, بٹ آئی آلویز ہیڈ دس فلیئر آف getting into trainings and خاص طور پہ corporate trainings, academia, and then I started that after doing a few certifications from abroad. I went to US, I studied there whatever I wanted to do, اور اس کے بعد I came back and I started with the trainings. ٹریننگس کرتے کرتے ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بہت زیادہ ایک دم سے ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے کسی بھی چیز کا. جیسے کسی زمانے میں MBA کا بہت ٹرینڈ چلا, پھر BCom M.Com کا بہت ٹرینڈ چلا. سو اسی طرح ایک دم سے شور اٹھا ای کامرس کا. اینڈ پیپل ہیڈ دس پری کنسیوڈ نوشن کہ ای کامرس از سم تھنگ جس میں آپ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, انٹرنیٹ ایکسیس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ڈالرز کی برسات شروع ہو جائے گی. جسٹ لائک آئی واز ٹیلنگ یو لٹل وائل اگو کہ فری لانسنگ سے اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ فری لانسنگ از جسٹ لائک یو آر فری ٹو ورک وین ایور یو وانٹ ٹو, یو آر فری ٹو کم اینڈ گو ہاؤ ایور یو لائک, اور اس میں تھوڑا سا کام کر کے بہت سارا آؤٹ کم کمایا جا سکتا ہے. سو اس آپ کے کوشچن کے لیے کرکس یہ ہے کہ freelancing and e-commerce both, they're very very rewarding, yes, but they require a lot of hard work, they require your dedication, you need to be self disciplined, you need to be very intrinsically motivated to do that. سوشل میڈیا پر بے شمار ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور میں نام لوں گا کیونکہ آج کل بہت ویڈیوز اس کی وائرل ہوتی ہیں. شاہد انور, ایسے بہت کیریکٹرز ہیں جو کہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے سے آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کتنے پیسوں سے آن لائن بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, بیئر منیمم کی اگر میں بات کروں رخشان صاحب, تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اس سوال سے بھی پہلے فنڈامنٹلی ایک اور سوال پوچھنا چاہیے کہ ہاؤ مینی ماڈلز آر دیئر, آپ کس کس نیش میں جا کے آپریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ وین یو اسٹارٹ ود اے کوشچن, obviously the next step for you would be کہ آپ جائیں اور اپنی مارکیٹ ریسرچ خود کریں سب سے پہلے, بیکاز obviously self done is well done. سو ادھر ادھر کی سب کی سنیں لیکن کریں وہ جو آپ کی اپنی بزنس ایکیومن آپ کو کہتا ہے, جو آپ کا اپنا دماغ آپ کو کہتا ہے کہ جی ناؤ دس میک سینس, دس از پریٹی لاجیکل, اٹ ہیز ریشنل. آپ ماڈلس کو سمجھیں, ہر ماڈل کی بیئر منیمم ریکوائرمنٹ, ہر ماڈل کے بریک ایون تک جانے کا پوائنٹ, ہر ماڈل کی پروفیٹیبلٹی, اس کا رسک فیکٹر ڈفرینٹ ہے. کسی میں بھی آپ کسی بھی چیز کو مائنس نہیں کر سکتے ٹوٹلی. ہاں, کیونکہ obviously ای کامرس از بزنس, online business, right? So it's not a lot different from the traditional e-commerce, traditional markets and business strategies that we have already, جو business
स्टडीज़ में पढ़ाई जाती हैं, MBAs में पढ़ाई जाती हैं, कॉमर्स में पढ़ाई जाती हैं, तो सबसे पहले उसका बेसलाइन नॉलेज इकट्ठा करें, अपने रिसर्च करें, देखें कि आपकी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से आपको कौन सा मॉडल सूट करता है. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस मिस्टेक कि वो चाहते हैं कि हम अपना जेवर, अपनी बाइक, अपना लास्ट रिजॉर्ट जमा पूंजी बेच के बस सारा इसमें लगा देंगे. दैट्स आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वाइज अप्रोच टू डू दैट. सबसे पहले अपनी रिसर्च करें और देखें कि आप कितना रिस्क कितने टाइम के लिए बेयर कर सकते हैं. जो कि हम वैसे अगर कोई किराना स्टोर भी खोल लेते हैं फॉर अ लेमैन एग्जांपल, तो हम उसमें भी देखते हैं कि कम से कम हमारे पास साल का स्टॉक और साल का बैकअप ओवरहेड एक्सपेंसेस निकालने के लिए हमारे पास मौजूद हो. सेम गोज़ फॉर ई-कॉमर्स. मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं खाली जेब था, मैंने कारोबार शुरू किया, अब मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं, मैंने बंगला. ये जो स्टोरीज डिजिटल मीडिया पे चल रही हैं, यानी स्कैम है ये सारा कुछ. मतलब आप तो कह रही हैं कि बहुत इसके लिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन और लक और सारी आपको स्ट्रेटजीज़ को मद्देनज़र रखना है, लेकिन इतने लोग कामयाब नहीं हुए जितने यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोज़ चल रही हैं. अच्छा, तो क्या झूठ है ये? अच्छा पता है एक्चुअली होता क्या है कि सक्सेस स्टोरी जो है ना, उसमें ऑब्वियसली नाम ही उसका, इट्स कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट विच इज़ talking about the success of a person. What we discount in those videos is कि हम उनसे ये पूछना भूल जाते हैं या ये फैक्टर काउंट इन करना भूल जाते हैं कि उस सक्सेस से पहले उन्होंने कितने नुकसान उठाए, कितना टाइम लगा उनको. उन्होंने 2-4 घंटे नहीं काम किया बल्कि 16-16, 18-18, इवन 20-20 घंटे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो काम करते हैं, उनको खाना पीना भूल जाता है. आपकी ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब में तो ऐसा नहीं होता. आप 9 to 5 काम करते हैं और इसके बाद यू जस्ट शट आउट द लैपटॉप एंड द मोबाइल और आप कहते हैं उसके बाद मुझे कोई व्हाट्सएप या ईमेल भी ना करे. लेकिन जब आप अपना खुद सोलोप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस रन करें, वो जो सारी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं उसके पीछे एक बहुत लंबा जर्नी है. अब लॉजिकली स्पीकिंग मेरे जैसे बंदे के लिए वो क्यों मेक सेंस, वो कैसे बनेगा, वो लॉजिकल कैसे बनेगा, वो मुझे इम्प्रैक्टिकल क्यों नहीं लगेगा. वो इसलिए नहीं लगेगा कि अगर किसी के पास पैसे नहीं थे, उसने इन एनी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इतने पैसे, गाड़ी, बंगला सब कुछ खरीद लिया, उसका एक ही लॉजिकल जवाब है और वो ये है कि ही स्टार्टेड ऑफ विद गेनिंग द नॉलेज, ही स्टार्टेड ऑफ विद वर्किंग विद सम सीनियर्स फॉर फ्री मे बी, इवन इफ़ इट्स द लास्ट रिजॉर्ट. थोड़े टाइम के लिए उसने सीखा, उसने कोई इंटर्नशिप की, उसने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू की, दूसरों के बिजनेस ऑपरेट किए, पैसे इकट्ठे किया, कैपिटल लगाया, अपना कैपिटल किसी स्मार्ट किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. इट्स दैट सिंपल. आपने कैसे स्टार्ट? आपने बायोलॉजी पढ़ी, फिर आप US चले गई, वहाँ से आपने कोर्सेज किए, फिर आगे आपने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी और होलसेल अकाउंट आपने बनाया अपना. अब आप ट्रेनिंग्स भी दे रही हैं, तो आपकी जर्नी क्या थी? आपने कितने पैसे कमाए, कितने गंवाए? अच्छा सवाल है. अच्छा, जैसे मैंने कहा कि रिसर्च और अपना नॉलेज जो है ना, दिस इज़ द की एंड दिस इज़ द होल स्टोरी आउट ऑफ इट. ज़ाहिर सी बात है, मैं जितना मर्जी बिजनेस का सेफेस्ट मॉडल उठा लूँ, रिस्क मिटिगेशन जो है वो आप उसको बेयर मिनिमम तक ला सकते हैं, आप उसको बिल्कुल मिटिगेट नहीं कर सकते. नेचुरल सी बात है, जब आप इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें, मार्केट ट्रेंड है, फिर कोविड आ गया बीच में, डॉलर, इन्फ्लेशन, फ्यूल की प्राइसेस, हर चीज़ जो है वो स्काई रॉकेट कर रही है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद इसका कोई अब ट्रेंड भी नहीं है. यू कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट, पीपल इन द इंडस्ट्री कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये अब ऊपर जाएगा या नीचे कभी वापस आएगा भी या नहीं. सो आई बायोलॉजी एंड एमफिल असाइड, आई हैड जॉइंड द ट्रेनिंग एंड एकेडेमिया इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मुझे 7 साल हो गए हैं. आई taught in universities, trained people from LUMS, UET, Gotham, etc. So वो एक ट्रेनिंग का जो जर्नी था, उसके साथ I wanted to apply the Warren Buffett formula, जिसमें वो कहते हैं कि जी never put all your eggs in one basket, and he is all big on praising and you know promoting the idea कि जी multiple streams of income होने चाहिए. So I wanted to do that. अब luckily बहुत सारे लोगों के लिए केस अप्लाई नहीं भी होगा. लकीली मेरे हस्बैंड के पास कुछ कैपिटल पड़ा हुआ था. आई रिक्वेस्टेड हिम कि जी आप मुझे थोड़ा सा ये ना बोरो करने दें अपने से, और आई बोरोड अबाउट $7,000 इनिशियली. ये लास्ट ईयर की बात आपको बता रही हूँ. उसमें फिर होलसेल को मैंने पहले खुद सीखा, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स में मैंने सीखा. मैंने ट्रेनर्स, ऑब्वियसली एक्सेस थी तो मैंने ट्रेनर्स से पूछा, मैंने फेसबुक के जो ग्रुप्स जिसमें हम अक्सर स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं, वहाँ पे बहुत क्वेश्चंस किए, नहीं समझ आ रही थी, स्टक हो गई, बहुत टाइम लगा सीखने में. सो जनरली व्हाट हैपेंस इज कि होलसेल बिजनेस में आपको 3 to 4 months में रिटर्न आना शुरू हो जाता है. मुझे रिटर्न आना शुरू हुआ 6th month में. इसको मैं लॉस नहीं कहूँगी, इसको मैं कहूँगी द कॉस्ट ऑफ लर्निंग. Because this is not a failure for me. Yes, it was a roadblock. There were many roadblocks, to be honest. But I think it was a great learning experience where I was not handicapped by anything, by anybody. I was not exploited by anybody कि मुझे नहीं पता
तो जिस वर्चुअल असिस्टेंट को या जिस वर्कर को, हेल्पर को मैं हायर कर रही हूँ, वो अपनी मर्जी से सारा काम चलाता रहेगा. सो दैट इज़ प्रॉब्ली एग्जैक्टली द वे हाउ पीपल शुड बी डूइंग इट. अच्छा, लोग सोशल मीडिया पे आजकल ये लिख रहे हैं एनेबलर्स फ्रॉड है और लोगों को झूठी कहानियाँ सुना के उनको अपने पास लाते हैं और पैसे बटोरते हैं और नौजवानों को रिटर्न कुछ नहीं मिलता. इस सवाल का क्या जवाब है? बिल्कुल ठीक है. अच्छा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस मच नीडेड क्वेश्चन. लोग तो ये भी कहते हैं, मैं ऐड कर दूँ कि जी हज़ारों डॉलर्स चार्ज करें कोर्स के लिए और जवाब में स्टूडेंट्स कुछ नहीं कमाते हैं. एसेंशली मैंने जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे हैं ना इस वक्त, मैं उन सब स्टूडेंट्स के साथ इन टच हूँ. और ये पॉसिबल कैसे है? ये ऐसे पॉसिबल है कि थ्रू आउट द वीक हर कोर्स के हर बच्चे के साथ मेरी ट्रेनिंग हो रही होती है. एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मिसिंग है वो है लर्निंग माइंडसेट का. दे कम विद द डॉलर साइंस इन देयर हेड एंड दे आर नॉट रेडी टू लर्न एनीथिंग एल्स other than the training material that they've been given. नहीं, वो सुन के भी तो डॉलर ही आ रहे हैं ना. हाँ, वो वही वीडियोस देख रहे हैं. हाँ, उनके दिमाग में वही चीज़ है. देखें, मैं अगेन वही बात कर रही हूँ कि मैंने अपनी पॉडकास्ट का फोकस शिफ्ट कर लिया बिल्कुल सक्सेस स्टोरी से. मैं चाहती हूँ कि एक वो फैसलाबाद की जिन हकीम की मैं आपको बात बता रही हूँ कि वो इतने हज़ारों पाउंड्स कमा रहे हैं, मैंने उनकी पॉडकास्ट में सबसे पहले सवाल पूछा, आपने डुबोए कितने पैसे? एंड ही टोल्ड मी अबाउट इट. वो पॉडकास्ट पड़ी हुई यूट्यूब पे, वो जाके देखें. और अगर कोई नहीं भी बात कर रहा उस वक्त, तो इस बात को समझें कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में ईजी नहीं है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है. अगर वो है तो फिर वो स्कैम है. एनेबलर्स या एनेबलर्स के कोर्सेज़ या किसी भी XYZ ई कॉमर्स कंपनी के कोर्सेज़ जो हैं वो फ्रॉड क्यों नहीं है, उसका एक बहुत अच्छा रीज़न है. उसका रीज़न ये है कि देखें, कोर्सेज़ और ट्रेनर्स आपको द राइट डायरेक्शन, द राइट रिसोर्सेज तक लेके जा सकते हैं. अंग्रेज़ी का एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट फोर्स इट टू ड्रिंक. हमारे बच्चों के साथ यही हो रहा है. मैंने उनसे पूछा कि जी कॉमर्स का क्या मतलब है? कॉमर्स का मतलब है जी बिज़नेस. ये तो सबको पता है. मेरा सवाल हमेशा ये होता है कि आप बिज़नेस इंडस्ट्री में सर्व करने आए हैं या बिज़नेस इंडस्ट्री में अपना बिज़नेस ऑपरेट करने आए हैं? आपने पिछले 1 या 2 महीनों में बिज़नेस पे कितनी किताबें या आर्टिकल्स पढ़े हैं? और आप यकीन नहीं करेंगे 100% बच्चों का जवाब होता है कोई नहीं. ज़्यादा रीडिंग हैबिट तो यहाँ पे है नहीं. 90% बच्चों को यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का नहीं पता. उनको बिजनेस में ब्रेक इवन का नहीं पता. उनको ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट का आइडिया नहीं है. और उनका हमेशा इल्ज़ाम क्या होता है? बिकॉज दैट्स द ईजीएस्ट थिंग टू डू कि जी हमें ट्रेनर्स ने नहीं बताया. अच्छा, कुछ ऐसे कारोबार भी हैं जो 1 लाख रुपए से शुरू किए जा सकते हैं? 1 लाख रुपए से कारोबार शुरू किए जा सकते हैं अमेज़ॉन पे. अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो येस, देयर इज़ वन मॉडल जिसके ऊपर एनेबलर्स ने, बल्कि अभी EVS जो इनका फ्री लाइब्रेरी ऑफ कोर्सेज है उसमें एक मॉडल ऐड भी किया ऑनलाइन आर्बिट्राज के नाम से. सो यू कैन स्टार्ट विद दैट. वो क्या, किस तरह से फॉलो किया जाए, उसका क्या मॉडल है? आर्बिट्राज में एक सिंपल चीज़ ये है कि आपको उसमें कंपनी US में रजिस्टर नहीं करानी पड़ती. UK में या US में कंपनी रजिस्टर नहीं कराते क्योंकि उसकी तो फिर एक अलग से कॉस्ट है ना, $800 या $900 या $1000 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट जिसमें आप LLC को रजिस्टर करा रहे हैं. उसमें आप अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट खोलते हैं और उसमें होलसेल से का मिक्सचर है थोड़ा बहुत. वो इस तरह से कि यू जस्ट मेक लिस्टिंग ऑन योर ओन अकाउंट और जैसे आपको ऑर्डर आता है तो फिर यू पिक इट अप एंड यू शिप इट ऑन देयर बिहाफ. सो लेकिन और आर्बिट्राज इज़ अ गुड मॉडल. It is obviously not as risky as other models that are out there जो easy money के लिए हमें लगते हैं और जिस पे पाकिस्तानी सुन भी रहे हैं कि अकाउंट्स बड़े बैन हुए हैं उनके. तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को निकाल के आप कोई भी मॉडल करें और अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी अच्छी बनाएं तो रिस्क मिटिगेशन हो सकती है. तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे. मेरे साथ मास्टर ट्रेनर एनेबलर से वाबस्ता है सना खान मौजूद थी. किस तरह से आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए और कम से कम 1 लाख रुपए से भी जिस तरह से उन्होंने बताया आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं. तो इस हवाले से जो आपके सवाल या आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर आगाह कीजिए. रुखसान मीर को दें इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़. मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.